عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی۔ شکر گزار ہیں خدا عظیم رب الافواج کی، جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اور جس کے کلمہ قدرت سے ہر ایک چیز وجود کے اندر آئی، اور جس کے کلام کی قدرت سے آج تک ہر ایک چیز اپنی اصل و صورت کے اندر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور آج خداوند کے لازوال کلام میں سے جن باتوں کو ہم جاننے، سننے اور سمجھنے والے ہیں، لاسٹ سنڈے بھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس سوال کا جواب دیا جس میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کے اندر خدا نہیں ہے، الوہیت کے اندر خدا نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم نے اس ویڈیو پیغام سے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ اہل زبان اس بات کو سمجھ سن پائیں اور خدا کے کلام کی حقیقت کو جان پائیں۔ اور آج بھی ہم ان کے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے اس سوشل میڈیا کے وسیلہ سے اس پیغام کو پہنچانے کو ہیں۔ اور یہ سوال صدیوں سے اہل زبان اور بہت سی قوم، قبیلوں اور امتوں کے لیے ایک منبع بنا ہوا ہے، ایک مسائل ان کے لیے ہے جو ان کی سمجھ کے اندر نہیں آ رہا۔ اور یہ اعتراضات بہت سے سالوں سے اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ صدیوں میں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور آج اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ خداوند یسوع مسیح منجی عالمین جب صلیب پر دیے گئے تو صلیب پر جب ان کو لے جایا گیا تو جب وہ صلیب پر تھے تو وہ غشی کی حالت کے اندر تھے، اور ان کو صلیب سے اتار لیا گیا، اور اتار کر ان کی جگہ پر کوئی اور ان کا متبادل ملتا جلتا شخص صلیب پر لایا گیا، اور ان کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر بھیجا گیا، جس سے وہ مشرق کی طرف انہوں نے تبت کے اندر جو کہ ہنزا والی سائیڈ ہے اس پر سفر کیا، اور 120 سال تک وہ زندہ رہے، اور 120 سال زندہ رہنے کے بعد وہ طبعی موت مرے۔ تو آج ہم خدا کے لازوال کلام میں سے جس لازوال کلام نے دنیا کی زندگیوں کو بدلا ہے، آج تک جتنے بھی اعتراضات خداوند یسوع مسیح کی ذات پر لگائے گئے ہیں انہیں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا، کوئی بھی انہیں سامنے نہیں لا سکا۔ وہ لوگ اس دنیا جہانی سے مٹ گئے لیکن ثابت نہیں کر پائے۔ بائبل مقدس آج بھی ہو بہو اسی طرح سے یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے، اور اس سوال کے اندر انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کو صلیب نہیں دیا گیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یسوع مسیح کو صلیب نہیں دیا گیا تو پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ ہماری منادی بے فائدہ ہے، ہم بے فائدہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر یقیناً جو خدا وقت کے مطابق کسی اور شخص کو وہاں پر لا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی خدائی سے باہر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات جاننے کی ضرورت ہے کلام مقدس کے اندر، اس اعتراضات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تعلیمی طور پر نئی نسل کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ سوالات، اعتراضات
اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا سوال کا جواب دینا بھی بہت لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے کتاب مقدس میں سے آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ جس خداوند یسوع مسیح کو ہم جانتے ہیں اس کی گواہی کیا ہے، اور جس کے بارے میں وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں انہیں اپنی عربی لغات کے مطابق اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جن کی عمر 120 سال ہوئی، جن کی ماں کی پیدائش، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی، لیکن جس یسوع مسیح کو ہم جانتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی ہم وڈیائی دیتے ہیں، وہ منجی عالمین ہے، کیونکہ اس کے ذات کے اندر اور اس ذات کے اندر فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عربی ایمان کے مطابق جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان کے اندر جانے پہچانے جاتے ہیں، ہر قوم کے اندر جانے پہچانے جاتے ہیں، ہر ایمان کے اندر جانے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا نام زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آیا ہے، اور مسیح ایک لقب ہے، اور یسوع نام آ کر آسمان سے آیا، اور فرشتے نے آ کر مقدسہ مریم سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح کی ذات کے اندر بڑا فرق ہے، کیونکہ ہمارے مسیح کے پاس بہت سے لقب ہیں، ان القاب کے اندر وہ ذات میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح جو ہیں منجی عالمین، وہ صاحب اختیار ہیں، صاحب اختیارات ہیں، وہ خدائے مدرک کی ذات کا نقش ہیں، وہ ہادی برحق، معصوم الخطا و گناہ، منبع رشد و ہدایت، وجہ تخلیق کائنات، گلشن دودو کا گل زائبہ اور آدم ثانی، صبر و رضا کا پیکر، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوی، حامیوں بے کسا، انسان کامل، معلم انسانیت، عاجزی انکساری کا عظیم شہکار، عظیم ترین مربی، کامل پیشوا اور نمونہ تلقید، کلام مجسم، عدیم المثال قاضی، عالمگیر، لا زوال نمونہ انسانیت، صفات جمال کا، حسن و جمیل کا پیکر، معلم اخلاق، حکیم انسانیت، طبیب اعظم، ناظم فطرت، عظیم قائد، انقلاب، علم و دانش کا بخر اور ان دشت نمائی کے ہر داغ سے برا، ابتدا، الفا، اومیگا، اول اور آخر، قدوس کے جلال کا پرتو ہے، حق کا نقش ہے، لسانی ہے، اول اور آخر ہے، راہ، حق اور زندگی ہے، منجی دو عالمین ہے، زندوں اور مردوں کا عادل اور منصف ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے اندر یہ بات نہیں ہے جو میرے اور آپ کے منجی کی ذات کے اندر، کیونکہ اس کے القاب اس طور سے ہے، وہ جس نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوالات ہم ان کا اس دور سے سیکھنے کے لیے، متلاشی لوگوں کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس لیے آئیے کتاب مقدس میں سے اب ہم اس کا آغاز کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں کا عام خط، سوال کو آپ نے توجہ میں رکھنا ہے، پھر آپ کو اس پیسج کی سمجھ آئے گی، اور میری گزارش ہے جتنے لوگ سوشل میڈیا کے وسیلہ سے خدا کے لازوال کلام کو سن رہے ہیں، ضرور انہیں دوسروں تک شیئر کریں،
पहुंचाएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इस इंजील की मुनादी के लिए इस पैगाम को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया में खुदा का कलाम पहुंचे और बहुत सी जिंदगियां खुदा के कलाम से मुस्तफीद हों। तो आइए किताब मुकद्दस में से पौलुस रसूल का लिखा गया खत करंथस की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयते मुकद्दसा को खुदा के कलाम में से देखें। खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है, मैं हकीमों की हिकमत को नेस और अकलमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहां का हकीम, कहां का फकीह, कहां का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं, यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम, गौर से सुनिएगा, हम हजरत ईसा की मुनादी नहीं करते। हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत, खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा। आगे लिखा है, बड़े गौर से तवज्जो से सुनिएगा। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करें। खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदा को नेस करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से, मसीह यीशु में जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी, पाकीज़गी और मखदसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो फख्र करे वो खुदावन पर फख्र करे। कलामे खुदा का बड़ा सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत, सलामती और नजात का सबब हो। कलामे मुकद्दस के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल, जिसकी एक बड़ी अजीम खिदमत रही है, जिसके बारे में कलामे मुकद्दस के अंदर, जिसने नए ऐदनामा के अंदर खतूतों की खिदमत के अंदर 14 खतूत लिखे हैं, और इन 14 खतूत के अंदर, इस खतूत के अंदर उसने यीशु मसीह की मसलूबियत, यीशु मसीह की सलीब के बारे में बड़े खूबसूरत बयान दिए हैं, और बताया है कि जिस यीशु की मुनादी, जिस मुनज्जिए आलमीन की मुनादी, जिस राह, हक और जिंदगी की मुनादी, जिसने फरमाया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं,
जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का दरवाजा मैं हूं। जिसने फरमाया कि देख मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। देखिए पौलुस उस मसीहा की बात करता है, उस यीशु मसीह की बात करता है जिसने सलीब पर अपनी जान दी है। इसीलिए रसूल लिखता है कि चुनाचे मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। मैं तुम्हें वही खुशखबरी देता हूं, क्योंकि आज तक तारीख क्या यीशु मसीह की जात पर बहुत से इतराजात लगाए गए, और ये इतराजात जो है आज तक कोई भी सच साबित नहीं कर सका है। और आज तक कोई भी उस अंजीले मुकद्दस या किताबे मुकद्दस को तहरीफ कहने वाले आज वो बाइबल मुकद्दस साबित नहीं कर सके जो असल शक्ल के अंदर है। कहते ये हैं कि तहरीफ है, तहरीफ की बात करते हैं, लेकिन असल उस नुक्से को जो अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है उसी को तहरीफ में कहते हैं, लेकिन वो पेश नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास तो यीशु मसीह का हू बहू कलाम उसी तौर से पहुंचा है, उसकी जात उसी तौर से बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आती है, उसकी जात उसी तौर से बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। क्योंकि जिस मसीहा को हम जानते हैं उसने सलीब पर अपने लोगों के लिए जान दी है, और जिसकी बात कोई और अक़वाम या इतराज़ात वाले करते हैं तो उसमें से बहुत से हवाला जात मौजूद हैं इल्हामी किताबों के अंदर। इतराज़ात करने वालों के पास खुद ये आयात मौजूद हैं कि यीशु मसीह जात में कौन है, लेकिन उन चीज़ों को इस तौर से पेश किया गया है। आइए पहला एतराज़ हम यीशु मसीह की इस जात के अंदर देखते हैं। आइए, हालांकि इल्हामी किताबें इस बात का सबूत देती हैं, और आइए सूरह मरियम उसकी आयत नंबर 16 के अंदर लिखा हुआ है कि ए मोहम्मद इस किताब में मरियम का भी जिक्र है जबकि वो अपने घर के लोगों से अलहदा होकर एक मशरिक मकान में आई। हालांकि जब हम बाइबल में देखते हैं तो हमें मुकद्दसा मरियम का कोई भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि वो अपने घर से अलग हुई है। और दूसरी सूरह मरियम 17 के अंदर लिखा हुआ है, फिर लोगों से पर्दा कर लिया, मरियम ने उसके पास अपनी रूह को भेजा और उसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। उसके बाद अगले हिस्से में हम देखते हैं सूरह मरियम आयत नंबर 18 और 20 के अंदर, वहां पर लिखा है हवाला नंबर 2 के अंदर कि तूने उसकी तरफ से आड़ कर ली नहाने के लिए या सर से जुएं निकालने के लिए। हवाला नंबर 2 पता चलता है कि मरियम ने वहां नहाने गुस्ल या अपनी सर से जुएं निकालने के लिए पर्दा किया। सूरह मरियम आयत नंबर 18 और 20 ये कहने लगी कि मैं तुझ खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर कुछ भी खुदा तरस है। उसने जवाब में कहा तू खुदा का भेजा हुआ कासिद है, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूं। कहने लगी भला मेरे यहां बच्चा कैसे हो सकता है कि मैं तो मुझे किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया है। और यहां पर देखिए बहुत हवाला जात और बहुत कुरान करीम की हमें आयात यहां पे मिलती है।
لیکن ہم نے بائبل مقدس کی اس تناظر سے دیکھنا ہے کہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی اور سمجھاتی ہے، کیونکہ اس اعتراضات کو تاریخ کے اندر 1908 2 نومبر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی لگایا، اور مسیح ہندوستان کے اندر ایک کتاب ہے جس کے اندر اس اعتراضات کو پرنٹ کیا گیا۔ یہ کتاب آپ کو قادیانیوں سے مل سکتی ہے، اور یہ 2 نومبر 1908 کو اعتراضات کے طور پر شائع کی گئی کہ یسوع مسیح غشی کی حالت کے اندر صلیب سے اتار لیے گئے۔ اور آج ملک پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی آ کر یہی اعتراضات کیا اور یہی ہو بہو الفاظ استعمال کیے، لیکن میرے اور آپ کا مسیحا غشی کی حالت کے اندر نہیں تھے۔ اسی لیے خدا کا بندہ رسول لکھتا ہے، کیونکہ صلیب کا جو پیغام ہے ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے۔ صلیب دنیا کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ اگر دین مسیحیت میں سے، اگر مسیحی ایمان میں سے صلیب کو نکال دیا جائے، صلیب کا نشان غائب کر دیا جائے اور صلیب دین مسیحیت کے اندر پیش نہ کی جائے تو ہم مسیحیوں کا ایمان بے فائدہ ہے۔ اسی لیے پولس رسول لکھتا ہے کہ میں اس مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہوں جس نے صلیب پر اپنی جان دی، کیونکہ بہت سی شہادت، بہت سے ثبوت یسوع مسیح کی شان کے اندر اسے منشی عالمین ثابت کرتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے اس ایمان کے اندر بہت سی باتیں قلم بند کی گئی۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ پیدا ہوئے، وہ مقدسہ مریم، جس کے بارے میں ابن مریم لکھا، کیونکہ مقدسہ مریم اور یسوع مسیح کی شان اور ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کی شان کے اندر فرق ہے، کیونکہ جو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہ کھجور کے درخت کے نیچے پیدا ہوئے۔ ہمارے مسیح کہاں پہ پیدا ہوئے جی؟ بیت لحم چرنی کے اندر۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ دودھ پی رہے تھے تو جب لوگوں نے ان پر اس اعتراضات کیے تو وہ دودھ پیتی عمر کے اندر انہوں نے کیا کیا جی؟ بولنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میرے اور آپ کے مسیح نے 12 سال کی عمر کے اندر بولنا اور تبلیغ کرنا شروع کیا ہیکل کے اندر آ کر۔ اور لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بچپن میں ہی مجھ پر کتاب اتاری گئی ہے اور میں کتاب لے کر آیا ہوں اور میں نبی ہوں۔ حالانکہ مسیح خداوند نے اپنے بچپن میں ایسی کوئی بات نہیں کی، اور مسیح خداوند نے زمین پر آ کر جس کی منادی کی وہ توریت کی منادی تھی۔ اس نے اس نبیوں کے تمام نوشتوں کے بارے میں وہ باتیں کہیں جو اس کے حق میں لکھی گئی تھی۔ حالانکہ انجیل مقدس یسوع مسیح کی سودے آسمانی کے بعد اس کے شاگردوں نے قلم بند کی ہے اور پاک روح کے وسیلہ سے قلم بند کی گئی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہمیں بہت سی شہادتیں اور بہت سے پروف اس بات کے ملتے ہیں کہ ہمارا مسیحا زندہ ہے، قادر مطلق ہے، عظیم ہے، قادر ہے، مہیب ہے، مہربان ہے، لسانی ہے، اور وہ منبع رشد و ہدایت ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ یرمیہ لکھتا ہے، آئیے کتاب مقدس میں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے حکموں کی
मानित होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना। यहां पर खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है कि जब तू लतीफ को कसीफ से जुदा करेगा, लतीफ का मतलब है सच्चा, बरहक, अटल रहने वाला, और कसीफ का मतलब है झूठ। वो कहता है जब तक लतीफ को कसीफ से जुदा ना करेगा तो तू मेरे मुंह की मानित होगा। वो कहता है जब इन दोनों चीजों के अंदर फर्क करेगा। हम क्या करते हैं, हम किसी की बात कहने पर कई लोग कह देते हैं हाँ जी बेशक बेशक हम हजरत ईसा पर ईमान रखते हैं। हजरत ईसा का जो लफ्ज है ये 610 ईस्वी के अंदर आकर इसका आगाज किया गया है। अगर उससे पहले आप बाइबल मुकद्दस की तारीख को पढ़ते हैं, ईमाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहले इंताकिया के अंदर ईमानदार और यीशु मसीह के शागिर्द मसीही कहलाए। इस्लाम की जो तारीख है वो मसीह के आने के 610 साल बाद है, और अब इसका वजूद 1400 साल है। और जिस मसीहा मसलूब की हम मुनादी कर रहे हैं वो 2000 साल से हो रही है, और 2000 साल से इसके बारे में बताया और सिखाया जा रहा है। उससे पहले पुराने एहदनाम के अंबिया कराम, अंबिया अकबर, अंबिया अस्कर यीशु मसीह के आने की मुनादी के बारे में बताते हैं। वो कैसा होगा, उसकी सूरत, उसकी सीरत, उसका जाहो जलाल, उसकी पैदाइश, उसका रहना, उसकी हयात मुबारक, उसके मौजज़ात, उसकी कुदरत, उसका कलाम, उसकी सीरत कैसी होगी और किस तरह से उसकी पैदाइश होगी, किस मकाम पर होगी, किस तरह से वो रहेगा, किस तरह से वो पकड़वाया जाएगा, किस तरह से वो सलीब पर जाएगा और सलीब पर अपनी जान दे के लिए कौमों, कबीलों, उम्मतों की निजात के लिए कफारा देगा। वो एक कौम के लिए नहीं आया, वो एक मजहब का नहीं, वो एक कौम, एक कबीले के लिए नहीं आया, बल्कि लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो खुदा के फरजंद बनने का हक हासिल करेगा। तो इसलिए मसीह मसलूब जो है उनकी जात के अंदर फर्क है। हजरत ईसा के बारे में लिखा कि उनकी जो उम्र होगी कितनी होगी जी? 120 साल। मेरे और आपके मुनज्जी की उम्र कितनी? 33.5 साल। उनके बारे में लिखा है कि अब ये भी इतराजात हैं कि जो हजरत ईसा है वो दोबारा आएंगे और जमीन पर हजरत इमाम मेहदी के साथ मिलकर खून रेजी करेंगे, उनकी अमामत के अंदर रहेंगे, फिर वो तबई तौर पर मरेंगे, फिर दफनाए जाएंगे। हालांकि मेरा और आपका जो मुनज्जी अब आने वाला है वो इस तरह से नहीं आएगा। वो आसमान से आकर किसी भी मकाम पर सीढ़ी लगा के नहीं उतरेगा। अगर वो आसमान से आ सकता है तो उसे 300-400 फुट के लिए सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लिखा है वो करूबियों पर सवार होकर आएगा और उसके मुकद्दसीन जमीन से उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। उसके ईमानदार उसकी तरफ चले जाएंगे और वो जमीन पर अपनी 1000 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 120 साल नहीं, बल्कि लिखा है कि 1000 साल अपनी बादशाहत कायम करेगा। फिर किस तरह से हम कह सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुनज्जी आलम यीशु मसीह दोनों जात में एक हो सकते, क्योंकि दोनों की जात के अंदर फर्क है। उनकी पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खजूर के तले है, मेरे और आपके आका की पैदाइश बैतलहम की
चरनी के अंदर है, जिसमें खुदा का बंदा यसाया 750 साल पहले लिखता है कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी जिसके बेटा होगा और जिसकी बादशाहत का आखिरत न होगा, वो खुदाए कादिर अजीब मशीर होगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हम उस खुदा को जानते हैं। और फिर जिस मुकद्दस मरियम से उन्होंने तवल्लुद लिया, जिस मुकद्दस बात के अंदर वो रहे हैं, उसकी साथ हजरत दाऊद के खानदान से मिलती है। और 1500 साल बाद ऐसी कुंवारी उस खानदान में पैदा हुई। फिर जाकर यीशु मसीह की पेशन गोइयां तकमील हुई। और इस बात को सुन लीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों की परमिशन की जरूरत है कि वो किस तरह से अपनी जात में कोई काम करे, लेकिन मेरे और आपका यीशु मसीह लामहदूद इख्तियारात रखता है। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आज तक ना वो बीमार हुए, ना वो तकलीफ में गए, ना वो किसी स्कूल ना किसी कॉलेज के अंदर डिग्री लेने के लिए गए, बल्कि वो इल्मुल गैब के खुदा हैं। वो दिलों के भेद जानने वाले हैं। जो कोई भी उसके पास आता वो उसके दिल की बात को मालूम कर लेता। इसलिए यूहन्ना कहता है कि हमने उसे करीब से देखा, हमने उसे चखा, हमने उसे छू कर देखा। वो कैसा है, उसकी लज्जत कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उसकी कुदरत कैसी है, उसका कमाल कैसा है, उसका जलाल कैसा है। हालांकि स्टडी के अंदर हम इस बात को सीख रहे थे, तो एक स्टोरी के अंदर ये बात लिखी कि अमेरिका के अंदर ये तालीम दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि खुदा की कोई जात नहीं, खुदा की कोई जात नहीं। और वहां पर एक मसीही भी मौजूद था। वो शख्स जो टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने हाथ उसके सामने हाथ खड़ा किया और कहा जी खुदा मौजूद है। उसने कहा खुदा मौजूद नहीं है। टीचर ने कहा जी खुदा नहीं है। लेकिन उस शख्स ने कहा खुदा मौजूद है। तो उसने कहा जी आप बताइए किस तरह से। उन्होंने कहा जी इसने सेब लिया और सेब के टुकड़े को जब तोड़ा, उसने कहा सर बताइए ये मीठा है या फीका है। तो उसने कहा जी आप खा रहे हैं इसे आप जानते हैं। तो उसने कहा जिसने इसके अंदर लज्जत पैदा की है फिर वही जानता है, वही खुदा है। आप किस तरह से कहते हैं खुदा मौजूद है। इसीलिए यूहन्ना कहता है हमने उसे चखा, हमने उसे छू कर देखा है, हमने हाथ लगा कर देखा है। फिर वो कैसे गशी की हालत के अंदर उतार कर सलीब से गायब कर दिया। अगर खुदा ऐसा करता तो फिर खुदा ने तौबा करके कहते वहां पे इंसाफ नहीं किया तो हमारे साथ इंसाफ क्या करे। खुदा ने तो मसीहा को इसलिए भेजा वो अपने लोगों के लिए कफारा दे, जान दे, कुर्बान हो, सलीब पर जाए। तो इसीलिए मेरा और आपका मसीहा कुर्बान। तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि गशी की हालत के अंदर सलीब से उतार लिए गए। अब सवाल यहां पे भी है कि अगर वो 40 साल की उम्र के अंदर वहां से गायब हो गए, तिब्बत के अंदर रहे, 120 साल लोगों में रहते रहे, तो 120 साल के अंदर कोई बताने वाला नहीं था। मसीह तो गायब हो गए, तिब्बत के अंदर चले गए। हालांकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि जब वो जिंदा हुए तो बहुत सी मुकद्दसों की कब्रें खुल गई, बहुत से लोगों को दिखाई दिए, बहुत से लोगों के साथ मुलाकात की। हालांकि एक हवारी तोमा ने कहा कि मैं जब तक अपने मसीहा की उन सुराहों के अंदर हाथ डाल कर न देख लूं मैं यकीन नहीं करूं।
मसीह ने से हाथ दिया और हाथ देकर उसे कहा, देख देख। इसलिए यूहन्ना लिखता है कि देख, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और सुने मरियम आयत नंबर 30 के अंदर यहां पर लिखा है कि वो कहती है कि इसके तर्जमे में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो कहती, फिर दर्द ज़ैद से खजूर के तने के नीचे ले आया और वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो जाती। ये सूरह मरियम आयत नंबर 23 के मरियम कह रही है। हालांकि जब मुकद्दसा मरियम को यह खुशखबरी मिली तो उसने क्या किया? उसने क्या कहा? आइए लुका तबीब का अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 46 और 48वें आयत को देखें। वहां पर लिखा है कि मुकद्दसा मरियम ने ये गीत गाया और कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की है। और देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग क्या कहेंगे जी? मुझे मुबारक कहेंगे। तो देखिए, इन बातों से वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि मसीह की ज़ाते अक़दस जो है वो कामिल है। उसे कौल कलाम के मुताबिक भेजा गया। अगर हम इसके पूरे तौर पर परूफ, आयात, रेफरेंस, अदाहीस, जो हदीसें, उनके पूरे रेफरेंस, तहरीर हैं, गवाहियां हैं, बताया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी है, उनका उठना बैठना कैसा था, उनका बचपन कैसा था। जितनी भी ये बातें हमें यहां पर नजर आती हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, उनका एक भी हवाला यीशु मसीह की जात के साथ नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जिंदगी और मसीह की जिंदगी का फर्क है। मसीह एक लक़ब है। मसीह का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, रिहाई देने वाला, और यीशु नाम वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो इसलिए जानिए, जो इतराजात यीशु मसीह की जात पर लगाए जाते हैं, जो इतराजात कहे जाते हैं, क्योंकि जब ये इतराजात जिस शख्स ने प्रिंट किए 1908 के, आज तक वो फिरका कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं। कितने लोग जो अहमदियों को जानते हैं, जिन्हें मरज़ई कहते हैं, मरज़इयों को कितने लोग? आज तक वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुकूमती तौर पर उनका नोटिफिकेशन है कि वो काफिर करार दिए गए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया था कि मैं मौदा मसीह हूं। मौदा मसीह का मतलब है वादे का मसीह मैं हूं। इसीलिए इसने मसीह की जात पर इतराजात किए, इसीलिए लोग इतराजात उठाते रहे कि मसीह गशी की हालत के अंदर उतार लिए गए, वहां से ले लिए गए। क्या जब आज तक आपने बाइबल में ऐसी बात पढ़ी है? हमारा ईमान इस किताबे मुकद्दस पर है, इस बाइबल मुकद्दस पर है, जिसे अंबिया ने खुदा के रूह के वसीला से हिस्सा व हिस्सा और तरह ब तरह कलम बंद किया, और खुदा उनसे कलाम लिखवाता, और कोई भी आयत मुकद्दसा किसी दूसरी आयत को काटती नहीं, बल्कि उसकी तायीद करती है। तो इसलिए इस से यह साबित होता है कि हजरत यीशु मसीह मुनज्जी आलमीन अपनी जात के अंदर खुदा है, वो लामहदूद है,
खुदा को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो किसके बदन के अंदर आए, किस सूरत में आए, किस जगह पर आए, किस मकाम पर आए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 10 जमा है तो वहां पे 500 जमा है, मैं वहां पे जाऊंगा। उसने कहा जहां पर भी वो हमाजा है। हमाजा का मतलब है वो हर जगह पर हाजिर और नासिर है। इसलिए ये तमाम सबूत साबित करते हैं कि जिस मसीहा मसलूब को मसीही जानते हैं, मानते हैं, जिस पर ईमान रखते हैं, उसकी शहादतें बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी मौजूद हैं। आइए चंद शहादतों को बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। आइए शहादत नंबर 1, जहां पर बात की जाती है अंजीले जलील मत्ती की अंजील के अंदर, उसका 27वां बाब और उसकी 26वां आयत के अंदर लिखा कि इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। आप इसको लिख सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं। यीशु मसीह की मसलूबियत की शहादत है। शहादत नंबर 2, अंजीले जलील मत्ती 27 बाब उसकी 31वीं आयत। वहां पर लिखा है जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। शहादत नंबर 3, और उन्होंने उसे मसलूब किया, उसके कपड़े कुर्रा डालकर बांट लिए। अंजीले जलील मत्ती 25 बाब उसकी 35वीं आयत। और देखिए जब उन्होंने इतने सारे काम कर लिए तो क्या सलीब पर वो किसी शख्स को तब्दील करने देते? क्या वहां पर एक फौजी था, 2 था या 3 था? ये उस वक्त रोम के अंदर एक बड़ा इज्तिमाई और गवर्नमेंट लेवल पे फैसला हुआ था और बहुत सा हजूम वहां पर जमा था। तो इसलिए ये शहादतें। और आइए गए शहादत नंबर 4, मरकस की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 37वीं और 38वीं आयत। वहां पर लिखा है कि फिर यीशु ने आवाज से चलाकर दम दे दिया और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के क्या हो गया जी? 2 टुकड़े हो गया। शहादत नंबर 5, अंजीले जलील लूका 23 बाब उसकी 46वीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज पुकार कर कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और ये कहकर दम दे दिया। शहादत नंबर 6, यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। इतनी शहादतें मिलती हैं यीशु मसीह की सलीब, इतने बयान मिलते हैं यीशु मसीह की सलीब। लोगों का हजूम देख रहा है, सुन रहा है, तो इतने बड़े हजूम में कैसे मुमकिन है कि एक शख्स को सलीब पर से उतार कर वहां पर दूसरा शख्स पेश कर दे?